am working as assistant section officer in Mr. Hospital. ये आपका क्या काम रहेगा? Assistant section officer are mainly doing loading and drafting of any file which comes to our ministry. So basically it's a file work. आप अपने बारे में बताइए. Sir, if there's anything which defines me as a person, then I will say they are the word hard work and persistence. I have been a stammerer from the age of 13, but now I am overcome. Becoming a part नहीं है ना, ओके बंद कर देता हूँ. has helped me this journey. I have done my graduation in the field of chemical engineering from NIT Roorkee in the year 2021, and I have done my industrial training from NFL Jaipur. My hobbies include reading books, watching movies, and interacting with different people. Okay. So you are traveling. I think you are from I don't know. हमको नॉलेज चाहिए. ओके, आप बताइए कि केमिकल इंजीनियर्स की क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी. Sir, chemical engineer basically oversees the whole plant because in every plant we have pipes, we have heat exchanger, like जो हमारे AC काम करते हैं, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब एक तरीके का हीट एक्सचेंजर है जो कार में जो AC यूज़ होता है, जो गर्म हवा को ठंडे पानी से मिला के AC हीट एक्सचेंज करते हैं. So in all these applications and even in the cylinder that we use butane, जो हम लोग खाना बनाने यूज़ करते हैं. All these things are basically knowledge of a chemical engineer is required. So you just spoke about the heat exchanger or the gas. I think the pharmaceutical industry also have the portion of the chemical engineers. Yes, sir. Pharmaceutical company also they actually take chemical engineers. Do you have some experience? No, sir. I am not sure. Okay. I have also studied the chemical engineering. I have discussed it. So this is the hydrology and as another thing. Okay. Tell me one thing. As I remember, in my studies, we had some chemical, some organic chemical engineering or organic chemistry and inorganic chemistry. Could you just tell me? Would you help me to retain those fundamental? What are those? I can say the organic chemistry, inorganic chemistry. Okay, sir. Sir, there are total 3 branches of chemistry. Okay. One is physical, inorganic, and then organic. Okay. Physical chemistry basically deals with the molecular nature of the. And what organic? Sir, organic chemistry basically deals with the all the compounds which are related to the carbon molecule. Inorganic? Sir, inorganic chemistry deals with the deals with the physical and chemical properties of the compound. It doesn't go into the deep chemical nature of the compound. Whereas in organic, we see the You said that organic has carbon molecules. Yes, sir. Do inorganic also have the carbon molecules? Sir, yes, they do have, but our main focus is not on the carbon, it's also on the whole periodic. So I we are the editorial, okay? So we have some columns where we write out some chemical innovation, and so you are a fresher, no? So how can you work for us? How you think you will help us to write those articles on the chemical innovation and all things? Are you confident enough that you can? You have to study a research paper. You have to make a short note of it and help your senior to have it print in our journal. Would you help? Yes, sir, I can help in this way. That recently we all are seeing the vaccines like Covaxin, Covishield, and the main problem with the scientists is that if you devise a new vaccine, then what are the chances that this vaccine is going to work on the population? So here comes the role of a chemical engineer. That No. I asked कि मैं बोलता हूँ कि तुम तो फ्रेशर हो, ठीक है?
तुम्हें रिसर्च पेपर पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी द एंटायर रिसर्च पेपर, क्या केमिकल इनोवेशन, आपको एक उसका शॉर्ट ब्रीफ लिखना है न्यूज़ पेपर, क्या आप कर लोगे? Yes, sir. I can devote my a maximum time for that, and I'm ready to do it. जो हमारी ये केमिकल्स होते हैं इसमें कौन कौन सी है गैसेज होती हैं? सर गैसेज जैसे कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो हीलियम, हाइड्रोजन, जो बलून्स में हाइड्रोजन यूज होता है। सर ने पूछा है केमिकल के अंदर कौन सी गैसें इंक्लूड होती हैं और जो हमारे जो केमिकल बनते हैं उसके लिए कौन सी गैसें का यूज होता है? सर वो हमारे कोई भी इक्विपमेंट होता है, जैसे कि गैस सिलेंडर में जैसे कि हम जैसे गिफ्टिन होता है, तो उसको हम प्रेशराइज फॉर्म में गैशियस फॉर्म में भर के रखते हैं। जब वो प्रेशर रिलीज होता है तो वो फिर लिक्विड लाइक वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब प्रेशर रिलीज करते हैं तो गैशियस फॉर्म में फिर हमारे गैस फॉर्म में आता है। और ऐसे ही सर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कि अभी दिल्ली का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, तो CO2 एमिशन के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो ओके पॉइंट, ठीक है। मैं अपनी HR को बोलता हूँ, आपको 2 रिसर्च पेपर देगी, आपको उसमें ना एक शॉर्ट ड्राफ्ट बनाना है, आपको टेक्निकल नॉलेज है, आई वांट टू सी योर ड्राफ्टिंग स्किल्स, ओके। अगर फिर मैं रिव्यू करेंगे सर, अगर वो रिव्यू में अगर मेरे पॉइंट्स बता देते हैं देन अच्छा उनको कॉल कर लेते हैं। कुशवाहा जी, उनको एक ना 2 रिसर्च पेपर दीजिए और एक उनको ऑफर लेटर दीजिए, बट वो ऑफर लेटर तो ही वैलिड होगा जब इनके जो शॉर्ट ड्राफ्ट हमें पसंद है। थैंक यू सर। सर हाँ सर, आपको बताते हैं सर, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप इस मैगजीन में क्यों आना चाहते हैं? बन जाएगी गवर्नमेंट पॉलिसी जो ड्राफ्ट में आती है आपको स्टडी करके शोर तो सर उसके बाद मैंने 6 मंथ ट्रेनिंग ली थी लैब में जो MG रोड मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है। उसके बाद मैंने सेम कॉलेज से DMLT की है, BSc MLT, और मेरा DMLT MBA में 2 साल का गैप हो गया था बिकॉज मेरी शादी हो गई थी एंड देन मैंने उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू। हाँ मैं देख रहा हूँ आप चलाते हो सर ये बचपन से नर्वस हो के चला रहे हो या नॉर्मल बातों में? सर मैं थोड़ा सा आपने बोला कि आपको फार्मास्यूटिकल लैब टेस्ट का ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है, जॉब किया आपने? जॉब किया बिकॉज जब मेरा DMLT हो गया था ट्रेनिंग के बाद शाखा हो गई और हम लोग हो गए थे नारा। जैसे हमारा जनरल है, हमारा कॉलम रहता है कि हम जैसे नई वैक्सीन, नई मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट और अपने के कॉलम तो वो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो पाइपलाइन इनके HOD तो है ना वैसे, तो डॉक्टर कुशवाहा ठीक है, आपको HR बताती है पर मैं आपके डॉक्टर कुशवाहा से बात कर लेता हूँ। तो अगर उसको किसी फ्रेशर को लेने में दिक्कत नहीं हुई तो वेल लेट यू, ठीक है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ओके सर, आप बताइए आप हॉबीज़ में बताएंगे अपनी हॉबीज़ क्या है? सर मेरी हॉबी बेसिकली मुझे प्लांटिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। मैं NGO से भी एसोसिएटेड मानस पर्यावरण संरक्षण संस्था
प्लांटिंग मेरा हॉबी है। मैं मोस्टली प्लांट करता हूँ, पौधों को पानी देना और उनकी केयर करना, तो मोस्टली इन सब में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। लाइक नेचर में बहुत मुझे इंटरेस्ट है, मैं इसलिए तो आज से पहले आपने कितने पेड़ पौधे लगाने की अंदाजा है? मैम सर मैं पिछले 8-10 सालों से एनजीओ में वर्क कर रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट। और अगर सर मैंने काउंट नहीं की, बट आपको अप्रॉक्स मैं बता सकता हूँ कि मैंने 500 तक प्लांट की है। और सकल एक चीज़ बताइए मुझे, आपको सुप्रीम कोर्ट में आपने सीवी में लिखा है कि आपने 2 केसेस में एज ए एसोसिएट काम किया। यस सर। जी, और एक हाई कोर्ट में आपने सिर्फ अपने करियर में 3 केस लड़े हैं। सर मोस्टली एक्चुअली सर आई वॉज एनरोल्ड विथ यूपी बार काउंसिल ओके in the year 2018 ओके and sir after that sir COVID आ गया and all and sir due to stammering मुझे sir of clerical work drafting work यू आर sir सो सहमत। yes sir I have I'm a PWS आज लगता है कि सारे हकले ही आ रहे हैं। आपको गुस्सा तो नहीं आता? no sir I'm really cool and calm person because मेरा ऐसा प्रोफेशन है सर। अगर मेरे को गुस्सा आएगा सर तो मैं कोर्ट रूम से बाहर हो जाऊँ, मुझे जैसा बाहर कर दीजिए। सर मैंने देखा बेशक खुले निगम पहुँच नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ बताइए आप मेरे को सुना कि जी मैं तो हाँ आप तो एक यार वकील हो, हाई कोर्ट में भी हो, तो आप सिर्फ हमारी जर्नल के लिए लीगल एडवाइस और आर्टिकल्स ही लिखोगे या अपना उधर प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखोगे? नो सर, अगर मैं आपके लीगल इसमें आता हूँ, लीगल कंपनी जो आपकी लीगल न्यूज़ जो प्रिंट करती है, आई थिंक सर यू आर अ प्रिंट मीडिया और वॉइस मीडिया, वी आर यू आर प्रिंट मीडिया। सो मैं सर आपकी केवल आपकी फर्म के लिए ही सर वो करूँगा। हमारे 2 प्रोफाइल रहेंगे, एक तो जो हमारे आर्टिकल्स रहेंगे, सेकेंडली हमारे बताएं वी आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री स्पीच मीडिया। सो हम पे केसेस होते हैं। सो आई वांट कि मैं वो चाहता था कि कोई जो हमारा लीगल टीम में भी है जो हमारे लिए केस भी लड़े। एंड एक चीज़ जो मैं आप देख रहा हूँ एक्सप्रेशन ऑफ है ना, आपका जो रिसेंट है मिस्टर अर्जुन मौली कुमार प्रसाद, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ओके, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो आप उनके साथ कर रहे हो है ना फ्री स्पीच। सर आप मेरे को बताइए फ्री स्पीच के बारे में क्या होता है? सर फ्री स्पीच सर मतलब फ्री स्पीच सर मेरी स्थिति में सर नहीं होगा मुझे। आई थिंक इसका फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सर एक्चुअली मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सर उनके साथ अपीयर होता हूँ। लाइक सर कोई ऐसा मैटर है जहाँ पे आपकी फंडामेंटल राइट का सर वायलेशन हो रहा है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए मेरे को उसके बारे में बताइए कि फंडामेंटल राइट टू सर इन आर्टिकल्स में 12 to 35 में जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है। ओके, कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन। तो ये सब सर जो राइट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। I got your point. So I wanna know one thing, कि that as a free and independent press media, okay, you have to write an article that regarding the status of the fundamental right in the current central world, in the design of the central world. So what do you analyze whether this government is crushing those fundamental rights or it's enabling its citizens to have the benefit of those fundamental rights? Sir, present ruling government, as per my opinion, sir, mostly enabling the fundamental rights. Enabling. Yeah, but media says that we are pushing the voice of people. हम JNU में वो कर रहे हैं, हम कश्मीर में ये कर रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में ये कर रहे हैं, हम रिलीजन के ऊपर
कुछ किसी को बोलने नहीं देते। सो मीडिया तो ये बोलता है, आप तो कुछ उल्टा ही बोल रहे हो कि ये वी आर इनेबलिंग, दैट गवर्नमेंट इज एनेबलिंग। सो कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? आपको चलो मैं एक आर्टिकल, अभी आपको एक आर्टिकल लिखना है 15 लाइन्स कि ये एनेबलिंग करती है, हेल्प, जितना मैं समझ पा रहा हूँ हेल्प करेगी। अब बताइए, एक छोटा एग्जांपल दे दीजिए, केस स्टडी। आप तो यार बहुत बड़े वकील हो। नहीं सर, एक बहुत हल्का बड़ा सा- वकील नहीं हूँ। एक आइडिया दे दीजिए केस स्टडी। सर आइडिया इन द सेंस दैट कोई भी सर, जैसे अभी रिसेंटली सर फॉर्म लॉज आए थे, उसको लेके सर एक्चुअली आई एम नॉट मच कन्वर्सेंट, दैट्स व्हाई आई एम मेरा है नहीं लिखा, फॉर्म लॉस को लेकर हुआ, या फिर जो जम्मू एंड कश्मीर में सर आर्टिकल 35 को लेकर जो भी वहाँ पे इम्पोज हुई, थोड़ा सा सर मैं इस चीज़ को हूँ कि फेस जो फेस वैल्यू है गवर्नमेंट की, वो थोड़ा सा हिंदुज़म की है, बट इंटरनली थोड़ा सा जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है किया जाता है। ओके, बट मैं तो यार इनेबलिंग का ये सोच रहा था कि आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को बढ़ावा दे रही है, और आप बोल रहे हो कि ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। आई विल, आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या रहेगा? सर एक्सपेक्टेड सीटीसी एज अ इंटर्न सर, अभी क्योंकि मैंने बहुत ही रिसेंटली ये ज्वाइन किया है, आई डोंट वांट एनी सीटीसी फ्रॉम योर साइड। आई वांट टू एक्वायर नॉलेज इन योर ऑफिस। फ्री में काम थोड़ी करोगे यार। Only sir, I want to stay for like 20 to 30,000 per month, and I fought my independent case in each month. यार हमारा बजट तो बहुत हाई था, ठीक है। ओके, आई विल गिव यू 40, एंड दिस विल नोट एज स्टाइपेंड, दिस विल नोट एज स्टाइपेंड, दिस विल बी सैलरी। ओके, ओके, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं? तो फिर हमें क्यों कौन, जल्दी बोलो यार, क्या काम है? इस सब्जी की दुकान है क्या? लेट आओगे? हम फ्री बैठे हैं क्या? 12 बजे हम जा रहे हैं, फोन मत करना आगे से। जब आप लोग को स्टार्टिंग में बोल दिया गया है कि बी ऑन टाइम आना है तो इट मीन्स आना है, यानी 9:30 बजे आना है तो आना है, ओके। तो से आपको इसका ध्यान रखना होगा। हेलो, हाँ जी, बोल रहा था कि आप अपने टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं है, तो आप अपना स्टेटिंग को कैसे ठीक करेंगे यार? मुझे समझ में नहीं आया। आपने दिक्कत होने लगी इसको। अरे सुनिए, ये सब बहाने हैं, ठीक है। अगर जिसको आना होता है ना, वो पैदल भी आ जाता है। देखिए भाई देखिए, गलती केवल एक बार की होती है भाई। तुम यार, तुम्हारा ये हर बार का ठीक है ना भाई, आगे से टाइम से आना, वरना भाई मत। तुमने भाई है ना, सुनो भाई पहले मेरी बात, तुमने क्या पता है दुखी करके सब लोग पूरे स्टाफ यहाँ पे दुखी हो गए। इतना भाई लेट किया हुआ आपने यार, क्या है ये बताओ? हाँ क्या? जी 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 क्या होता है? ओके नहीं, ये बताओ। नहीं, मैं एडवोकेट संकल्प बोल रहा हूँ। आने का टाइम क्या दिया गया था आपको? प्लीज टेल मी फास्ट। 9:30, राइट? आप आए कब? बी ऑन टाइम ब्रदर, डोंट डू दिस। टेल मी सॉरी, नोट यस सर, नो सर।
टेल मी सॉरी। ओके ठीक है। चलो तो फनी मोमेंट भी कर लो या फनी मूड अरे ड्रिंक्स ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। अकलाई काय रहे हो, अकलाई क्यों रहे हो, ठीक से बोलो। देखिए आपको जो भी सामान चाहिए ना भाई, अभी हम आपके पास वो पहुंचा रहे हैं। और जब तुमको उठा के थाने में डाल के दो डंडे लगेंगे ना, तेरे को जब पास पड़ जाएगी, ठीक है ना। जो आप ये कब के पहले तो भाई सही से बोलो, पहले फिर से बोलो एक बार, क्या बोले एकदम प्यार से बोलो, प्यार से। नो नो धीरे 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 धीरे, तेज नहीं, धीरे बोलो बोलो। अरे मैं भाई बोल रहा हूँ यार, बोल गए भाई, मतलब फोन किसको चाहिए तो बताओ पहले। भाई ऐसा है, तो गौतम वही है ना जो फतेहपुरी में रहता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरे को खबर मिली थी, तो फतेहपुरी के डाउन में जो 2 नंबर का माल रखा है ना, हाँ। मेरे को साथ में जा रही है, मेरे को उठा के ले गया भाई। अरे भाई तुम भाई बुलाओ ना भाई, किसको बुलाओगे बताओ, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, बोलो। हाँ, मैं तेरे को बताता हूँ भाई, जो तू बोल रहा है ना, ये तुम चल रहे आलू प्याज के बहाने। भाई तू अभी 5 मिनट बात कर लिया लेकिन तूने अभी तक अपना रेट नहीं बताया, तू कितना देने को रेडी है आलू प्याज के लिए तुमको। अरे पहुंच जाऊंगा। अच्छा ऐसा भेज भाई, भेज, हम भी यहाँ पे अरे बैठे पहुंच जाऊंगा यहाँ भाई, बैठे। 1 बजे बोला तो मैं 1 बजे पहुंच जाऊंगा। ये सुबह 12 हुए हैं ना। जंतर मंतर में बैठे, आ जाना। हाँ बाहर ही हूँ मैं। गौतम मैं तेरे को फोन करूँगा, ठीक है? स्टार्ट में ऐसे भी करें। हाँ? डाउनलोड मेरा नाम सर जो पर्पस के लिए कॉल किया था सर आपको। अच्छा अच्छा बोलिए, क्या जॉब करनी है आपको? अरे सर आप कितने आप टाइम से आना, ठीक है? अरे भाई साहब, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, मैं आपका हेड हूँ, पहले तो आप अच्छे से बात करो, वरना आपका इंटरव्यू लूँगा नहीं, आपको मैं जॉब नहीं दे दूँगा। नहीं, मुझे बोलने की दिक्कत हो है ना, उससे मतलब क्या है आपको जॉब चाहिए ना? हाँ सॉरी बोलो पहले, सॉरी बोलो, सॉरी, वरना इंटरव्यू में फिर। नहीं, मैं आलू प्याज तभी दूंगा जब अंसारी साहब के पास अच्छा बम मांग रहे हो क्या सर आप? अरे नागपुर के आलू मांग रहा हूँ। अच्छा नागपुर वाला गोला, अच्छा अच्छा समझ गया सर, नागपुर वाला गोला। हाँ अच्छा अरे है पंजाब वाला माल है ना सर हमारे पास, क्यों नहीं आप समझ रहे, तरीके से बात करिएगा, ठीक है? सर बताइए। आप क्या बताओ, मैं पहले आपको चाहिए क्या एग्जैक्ट बताइए। आपने मेरे जो पहले वाले से बोला कि जो चलो आपके पास नागपुर का अवेलेबल है तो पंजाब का दे दो। आपको जब यही नहीं पता कि कहाँ का आपको चाहिए क्या, तो हम आपको फिर देंगे क्या? उन्हें सब पता है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, वो आप ही उनको संभालते हैं सुबह से शाम तक। नहीं सर, ये आप बहुत गलत बात बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। आपको एग्जैक्ट या लगभग 1% बच्चे हक लाते हैं, और किसका का अभी तक कोई भी इलाज नहीं, तो लेकिन इसका केवल एक ही इलाज है यदि हम अपने को एक्सेप्ट करें। तो एक NGO है, उसका नाम है पीसा इस फील्ड में काम कर रही। यदि आपके आसपास का कोई बच्चा
गुस्सा नहीं है, कुछ लगे बंदे होते पूछ लेते गुस्सा। अच्छा, कोई भी इसको लेकर कोई भी सवाल होगा मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि जो बच्चे हकलाते हैं, हम लोगों ने ये देखा है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर कोई हकलाता है तो जो है सामने वाला व्यक्ति उस पर हंसता है। तो है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप भी स्टैमर हो, आपके दिल में क्या फील आता है? आपको गिल्टी फील आता है कि आपके दिमाग में कैसे विचार आते हैं? देखिए, यदि आप किसी भी विकलांग बच्चे के प्रति कुछ ऐसा बिहेवियर रखते हैं, सबसे पहले बात यह है कि वो बिल्कुल मोटिवेट हो जाता है, उसका लाइफ से वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। तो आपसे भी क्या यही फर्ज बनता है कि आप उसके साथ अच्छा बिहेव करें। आप कितने साल से आपको स्टेटिंग होती है? कितने सालों से? मेरा कुछ बचपन से, तो अभी मैं काम कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका एनजीओ? क्या नाम? सर, मेरे एनजीओ का नाम है ईसा। ईसा का फुल फॉर्म क्या है? सर, ईसा मेरा कभी लेकिन ये एक स्टैमिंग के लिए इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन है। हाँ, फ्री में वर्क करती है तो चार्ज? नो सर, ये एक एनजीओ है, फ्री ऑफ, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम बिंदु कुमार। बिंदु कुमार, कहाँ से है? सर, मैं हरियाणा से हूँ। एनजीओ ये जो आपका ईसा है, ये सारे शहरों में है? हाँ सर, आपको इस ब्रांच में सारी शहरों में मिल सकते हैं। यदि आप इंटरनेट या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे आपके एनजीओ से कैसे कॉन्टैक्ट करें? हमें कॉन्टैक्ट करके सर, आप किसी को बताइए कि वहाँ क्या आपको सर्च करेंगे। यदि आप वहाँ सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट कार्ड्स मिलेंगे। क्या सर्च करेंगे सर? आप गूगल पे 30 नाम से रिसर्च करें। इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन, ये स्टैमरर्स को बहुत करते हैं। आप लोग स्टैमर के फाइन अवेयर हो? डू यू नो स्टैमर? नहीं जानते कोई बात, आप लोग बता रहे हैं। स्टैमर जो लोग स्टैमरिंग करते हैं, जो लोग बात करते टाइम लाते हैं, जिनको ब्लॉकेज आ जाते हैं, जो कि नहीं पाते, ऐसे लोगों को स्टैमर कहते हैं। और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन। अभी हम हैं कश्मीरी गेट पे, लाइन पे उतर जाएंगे, लाइन पे उतर जाएंगे, पीछे से विधानसभा विश्वविद्यालय जो प्रॉब्लम्स होती है स्टैमरिंग की, उसको क्योर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सबसे बड़ी बात है। स्टैमरर्स कोई ठीक भी करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। और इंडिया के मोस्टली जो स्टेट्स हैं, जो टॉप शहर हैं, टॉप सिटी है, उनमें इनका एसएचजी होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक पीयर होता है जो उसको लीड करता है। और संडे इनका एक संडे मीटअप होता है, उसमें ये एक साथ इकट्ठा होते हैं और उसको वर्क करते हैं। तो आस पास कोई ऐसा पर्सन है उसमें स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, आप उसको बस गूगल से कनेक्ट कर सकते हो कि जाओ और गूगल पे ईसा टाइप करो। जैसे ही वो टाइप करेंगे ईसा, वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपके एक छोटी सी हेल्प से उस स्टैमरर की लाइफ चेंज हो सकती है। तो एक जैसे कि ऐसे जो स्टेटरिंग हकलाने वाले बंदे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपना कुछ मन का बात जो सेंटीमेंट होता है वो बोल नहीं पाते हैं। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने वाली एक तीसरा एनजीओ है दी स्टैमरिंग एसोसिएट, जिसको आप गूगल पे जा करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों को अभी स्टेटरिंग हकलाने के बारे में पता नहीं कि लोग हकलाते हैं या स्टेटरिंग करते हैं। क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो मतलब मुझे जो टीचर क्वेश्चन पूछता था तो मुझे आंसर आते हुए भी मैं टीचर को मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाता था। मैं बोलता कि सर मुझे क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता, इतना बोल के मैं बाहर हो जाता था। तो आप कैसे भी कोई भी कॉन्टेक्ट में होंगे कि जो स्टेटरिंग करते हैं, हकलाते हैं, कैसे मैं आपको हकला के दिखाता हूँ।
काश्मीरी गेट, मतलब ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे कि जो हकलाते हैं। तो ऐसे लोगों का आप मजाक या फिर आप हंसी फनी ना उड़ाएं, ऐसे बंदों को आप सपोर्ट करें। मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू। लेकिन अगर हम लोग अपने जीवन में अपना लें तो हो सकता है कि हम डेंगू को हरा पाएंगे। डेंगू को हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बस हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें, चाहे हमारा घर है, गली है, चाहे कुछ भी है, तो हमें अपने आसपास तरीके से साफ सफाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि डेंगू का मच्छर गंदगी में ही बहुत ज़्यादा फैलता है। जिस कारण डेंगू के कारण हमें किसी की जान गंवानी पड़ रही है, तो इसका तो हमारा हक बनता है कि हम अपने आसपास साफ रखें। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं कि चाहे पानी साफ है या खराब है, उसको इकट्ठा होने से रोक सकते हैं, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी और गंदे पानी दोनों में पैदा होता है। तो अगर हम कहीं भी पानी को इकट्ठा होने से रोकते हैं तो हम डेंगू के मच्छर को पैदा होने से रोक पाएंगे, और यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा डेंगू से बचने के लिए। इसके अतिरिक्त यदि हमें लग रहा है कि हमें जान महसूस हो रही है या फिर हमें दर्द महसूस हो रहा है मांसपेशियों में, तो हम किसी भी अस्पताल में जाकर निःशुल्क इसकी जाँच करवा सकते हैं, क्योंकि हर किसी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। तो ये कुछ कदम हैं जिनको अपनाकर डेंगू को आसानी से हरा सकते हैं, और ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप इसमें भागीदारी दिखाते हैं तो इससे हम जरूर डेंगू से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है एवं अनुरोध है कि आप डेंगू से बचें और इस स्वस्थ भारत में